السلام علیکم NAN24 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں عریج حبیب. نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر. پنڈادن خان کے نواحی گاؤں سروبا میں آتش زدگی کا افسوسناک واقعہ, معذور محنت کش کا گھر جل کر راکھ. ناروال میں انتظامیہ کی نااہلی و بے حسی, گزشتہ 3 سال سے واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب, دیہاتی گندا پانی پینے پر مجبور. جیکب آباد میں باولے کتے سرعام دندناتے پھرنے لگے, شہری خوف میں مبتلا. سہون اور گردونواہ میں گندم کی فصل تیار, کٹائی شروع. کاشتکاروں میں خوشی کی لہر تو دوسری طرف وہیں لوکل بیپاری اور لوکل کانٹا مافیا سرگرم. شہداد پور میں تعینات ہونے والے نئے SHO طفیل احمد بھٹو کا شہداد پور پریس کلب کا دورہ. جیکب آباد میں JUP نورانی کی جانب سے امر جلیل کے خلاف شہید اللہ بخش پارک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی. جسکم کے سابق چیئرمین شہید بشیر خان قریشی کی 9ویں برسی رتو ڈیرو میں منائی گئی. حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہی ہے, گورنر پنجاب چودھری سرور. گزشتہ روز گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی اوکاڑا کے نواحی قصبے 25 AL میں آمد. قصور گنڈا سنگھ والا کے مختلف علاقوں میں چوروں نے ات مچا دی, پولیس سوتی رہی جبکہ چور ہاتھ کا صفایا کر گئے. لوزرا گورنمنٹ فیملی ہسپتال میں نرسنگ سٹاف کی عدم دلچسپی, ہسپتال میں داخل معصوم بچہ علاج کے لیے تڑپتا رہا. اوسطا محمد سٹی میں بجلی کے بحران کو ختم کرنے کے حوالے سے ٹرانسفارمرز کا افتتاح کیا گیا. شہداد پور کے قریب گاؤں گہرام خان کی رہائشی 16 سالہ معمر خاتون صدوری دیگر افراد کے ہمراہ محکمہ ریونیو کے افسران کے خلاف سراپا احتجاج بن گئی. کھیوڑا پنڈادن خان میں روڈ پر ماحولیاتی آلودگی اور SOPs کی کھلے عام خلاف ورزی. لاہور میں خواجہ اسرار کی پراسرار ہلاکت. جیکب آباد تھانہ صدر کے علاقے سے خواجہ اسرار کی گھر سے لاش برآمد. منڈی بہاؤدین تھانہ صدر کے علاقہ میں 12 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی. لیاقت پور میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی طرف سے فرضی مشق کا انعقاد کیا گیا. خوشاب میں درینہ دشمنی کی وجہ سے سنترال روڈ پر مخالفین کی فائرنگ, 4 افراد جاں بحق. اسسٹنٹ کمشنر خوشاب رانا نعمان محمود کا گزشتہ روز گندم کی خریداری کے لیے جوہر آباد گندم سینٹرز اور خوشاب گندم سینٹرز کا وزٹ. صوبائی وزیر لیبر پنجاب کی سید زلفی بخاری سے اسلام آباد میں ملاقات. صحبت پور کی تحصیل فرید آباد کے شہر بھنڈ شریف میں واقع پل خستہ حالی کا شکار. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے
साथ रहिएगा। NN24 न्यूज की जानब से मैं हूं राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो धूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, जाए ना जाए ना जाए ना। अब भाई ने नवी मोटर कर ली थी, कब्रिस्तान चल गए। मैं किधर किधर कहता शाख चेक करने। ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि पिंड दादन खान के नवाही गांव सरोबा में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या। तफसीलात के मुताबिक आतिशज़दगी का वाक़या अख्तर अब्बास नायाब माजूर मेहनतकश के घर पेश आया। आतिशज़दगी की वजह शॉर्ट सर्किट। अहले इलाका ने रेस्क्यू 1112 के हमरा आग पर काबू पा लिया। समाजी हलकों की हुकूमत से माली इमदाद की अपील। और नारोवाल में इंतजामिया की नाअहलियों बेहिसी, गुज़िश्ता 3 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब, देहाती गंदा पानी पीने पर मजबूर। हाजीवाला में 7 साल कबल पंजाब वाटर फिल्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत प्लांट्स लगाया गया, जो कि देखभाल ना करने की वजह से खराब हो गया। आला हुकाम को दरख्वास्तें देने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर समेत ऑफिसर्स की प्लांट्स ठीक करवाने में नाअहली। इफ्तिताह 7 साल कबल एहसन इकबाल ने किया। 500 घरों पर मुश्तमिल 10,000 की आबादी खराब पानी पीने पर मजबूर और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला। महकमाना अदम तवज्जो के बायस नामालूम चोर वाटर प्लांट की टूटियां तक उतार कर रफू चक्कर हो चुके हैं। मुकामी अफराद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अदम तवज्जो पर शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस का मुतालबा। और नाज़रीन आपको जैकबाबाद से अपडेट करते चलें। जैकबाबाद में बावले कुत्ते सरेआम दंदनाते फिरने लगे, शहरी खौफ में मुब्तला। शहर में आवारा कुत्ते गली मोहल्लों में गौल सूरत में मंडलाने लगे। ज़िले इंतजामिया आवारा कुत्तों का खात्मा करने में नाकाम। फंड्स करप्शन की नज़र, शहरियों का जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सहवन और इसके गिरदोनवाह में गंदम की फसल तैयार, कटाई शुरू। एक तरफ तो सहवन और गिरदोनवाह में गंदम की फसल तैयार, कटाई शुरू कर दी गई, काश्तकारों में खुशी की लहर, तो दूसरी तरफ वहीं लोकल व्यापारी और लोकल कांटा माफिया सरगर्म मनपसंद रेट मुकर्रर करके काश्तकारों को दोनों हाथों से लूटने लगे। सहवन काश्तकारों का वज़ीर आला सिंध और फूड इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। और शहदादपुर में नए तैनात होने वाले SHO तुफैल अहमद भुट्टो का शहदादपुर प्रेस क्लब का दौरा। प्रेस क्लब के दौरा के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि SSP सांगड़ डॉक्टर फरक लंजार की जानिब से चलाई गई जराइम पेशा अफराद और समाजी बुराइयों के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली। मजीद कहा कि पुलिस और मीडिया का चौली दामन का साथ है। सहाफ़ी बरादरी समाजी बुराइयों की निशानदही करे, पुलिस कार्रवाई करेगी और शहर को क्राइम और समाजी बुराइयों से पाक भी करेगी। फर्ज शनास SHO की तैनाती पर सिविल सोसाइटी के अफराद और समाजी शख्सियात ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। और
اور जैकबाबाद में JUP नूरानी की जानिब से अमर जलील के खिलाफ शहीदुल्लाह बख्श पार्क से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली गुलाम दस्तगीर, ज़िले सदर मोहम्मद रफीक फखरी और दीगर की क़यादत में निकाली गई, जिसमें कारकुनान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर फ्लैग शगाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अमर जलील के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके सजा दे, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। और जस्कम के साबिक चेयरमैन शहीद बशीर खान की 9वीं बरसी रत्तो डेरों में मनाई गई। सिंध भर से हजारों लोगों ने शिरकत करके शहीदों को खराजे तहसीन पेश किया। इस बरसी के मौका पर रत्तो डेरों में जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे से जस्कम चेयरमैन मनान खान कुरैशी, जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के रहनुमा अल्लामा राशिद महमूद सुमरो समेत जस्कम की मरकजी क़यादत ने खिताब किया। नाज़रीन, आपको काड़ा से अपडेट करते चलें कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान सबसे कम मुतासिर हुआ। अवाम थोड़ा सब्र करें और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। फिर मजीद कहा कि PTM मुफाद परस्तों का टोला है, जल्द अपने मंतकी इंजाम को पहुंच जाएगा। मरियम और मौलाना फजल रहमान जाती मफादात की जंग लड़ रहे हैं। हमें अफसोस है ये लोग एक भी ऐसा हस्पताल ना बना सके जहां पर इनका इलाज हो सके। और गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर पंजाब की उकाड़ा के नवाही कस्बे 25 AL में आमद। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से फुल प्रूफ इंतजामात, जबकि इंतजामिया की तरफ से सफाई के हवाले से बेहतरीन इंतजामात। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर PTI की तहसील की क़यादत और स्पॉटर्स भी मौका पर मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब भर में 4 अरब से ज़ायद पीने के पानी के मंसूबे शुरू कर रहे हैं और पीने के साफ पानी की फ्राहमी के लिए वज़ीर आला पंजाब और हम एक ही पेज पर हैं। नाज़रीन, आपको कसूर से अपडेट करते चलें। गंडा सिंह वाला के मुख्तलिफ इलाकों में चोरों ने अत मचा दी। पुलिस सोती रही और चोर दुकानों का सफाया करके फरार हो गए। चोर एक ही रात में 6 दुकानों कर लूट कर फरार, शहरी गैर महफूज। महालम कलां में चोर बिलाल यासीन, मोहम्मद सलीम, मास्टर लतीफ़, अमानत घड़ी साज की दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान इन मशहूर दुकानों से लूट कर फरार हो गए। दूसरी तरफ भेड़िया में भी एक दुकान के ताले तोड़कर सफाया कर गए। अहले इलाका ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से फौरी नोटिस का मुतालबा किया। लोधरा गवर्नमेंट फैमिली अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की अदम दिलचस्पी, बच्चा इलाज के लिए तड़पता रहा। इलाज के लिए दाखिल बच्चे के अहले खाना की नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ अफसरान बाला को शिकायत लगाना महंगा पड़ गया। बच्चा इलाज के लिए तड़पता रहा। अस्पताल की नर्स साइमा आशिक मुतासरा अहले खाना की अस्पताल में वीडियो बनाती और गालम गलोच करती रही और बगैर इलाज के बच्चे तैमूर को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। अहले खाना का अस्पताल के बाहर एहतजाज, कहा कि बाअसर साइमा आशिक के सामने महकमा हेल्थ के ऑफिसर्स भी बेबस नजर आते हैं। वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करे। और औस्ता मोहम्मद सिटी में बिजली के बहरान को खत्म करने के हवाले से ट्रांसफार्मर्स के इफ्तिताह का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान डॉक्टर रुबाबा के फंड से और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा मीर अताउल्लाह खान की जानिब से ट्रांसफार्मर्स के इफ्तिताह का सिलसिला जारी है। फिरदौस कॉलोनी की मेन गली हजार खान गली को 100 kV और हक बाहू कॉलोनी मस्तोई मोहल्ला में 200 kV बिजली का नया ट्रांसफार्मर और नई तारें और पोल का इफ्तिताह किया गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा मीर अताउल्लाह खान का फिरदौस कॉलोनी में हाजी सोहबत खान और हक बाहू कॉलोनी में उस्ताद जान मोहम्मद के हमरा इफ्तिताह किया। मीर अताउल्लाह खान ने इस मौका पर गुफ्तगू भी की। इस मौका पर हाजी दीन मोहम्मद मस्तोई, अब्दुल मजीद मस्तोई और दीगर भी मौजूद कॉलोनियों के इलाका में मीर अताउल्लाह खान का शुक्रिया अदा किया।
नाज़रीन, आपको मज़ीद अपडेट करते चलें। शहदादपुर के करीब गांव गोहराम खान की रिहायशी 16 साला बुजुर्ग खातून महकमा रेवन्यू के अफसरान के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। 16 साला मुअम्मर खातून सुदूरी दीगर अफराद के हमरा महकमा रेवन्यू के अफसरान एसी शहदादपुर और मुख्तियार कार के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। बुजुर्ग खातून और दीगर अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया कि रेवन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान ने मिली भगत से हमारी ज़मीन के रिकॉर्ड में गैर कानूनी तौर पर रद्दोबदल की है। इन्होंने मुतालबा किया कि जालसाजी के मुर्तकिब रेवन्यू के अमले और 66 लाखों के खिलाफ कार्रवाई करके जाली खाते रद्द किए जाएं। जबकि दूसरी तरफ एसी शहदादपुर जावेद अहमद डाहरी ने कहा कि किसी किस्म की जालसाजी नहीं की गई, बल्कि ज़मीन की वरासत में गलती हुई है। तमाम फ्रीकैन के बयान ले लिए गए हैं, मामला जल्द हल हो जाएगा। जबकि मुख्तियार कार शहदादपुर कमरुद्दीन का कहना था कि किसी किस्म की जालसाजी नहीं हुई, बल्कि फ्रीकैन के दरमियान कोई मसला चल रहा है। फ्रीकैन फौतगी खाते को कैंसिल करने के लिए डीसी ऑफिस राब्ता करें। पिंड दादन खान मेन रोड पर माहौलियाती आलूदगी और SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी। जिप्सम फैक्ट्रियों के मालिकान की इंतजामिया से मिली भगत। पिंड दादन खान ख्योड़ा रोड पर रिहायशी इलाका, कारोबारी हजरात, दुकानदार और अहलियान इलाका के लोगों का जीना मुहाल हो गया। फैक्ट्रियों की गंदी डस्ट की वजह से दुकानदार मार्केट्स बंद करने पर मजबूर। मास्क का इस्तेमाल भी फैक्ट्री मालिकान नहीं करते। लोगों ने मजीद कहा कि एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। एसी पिंड दादन खान, डिप्टी कमिश्नर जहलम, कमिश्नर रावलपिंडी कार्रवाई करें वरना एहतजाज करेंगे। और लाहौर में ख्वाजा असरार की पुरस्रार हलाकत। नश्तर कॉलोनी के इलाके आसिफ टाउन में ख्वाजा असरार पुरस्रार तौर पर जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 25 साला अरसलान ख्वाजा असरार की घर से जली हुई लाश मिली। घर में आग लगी या लगाई गई, तहकीकात का सिलसिला जारी है। मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि लाश मुर्दा खान में मुंतकिल कर दी गई। और जैकबाबाद थाना सज्ज के इलाके से ख्वाजा असरार की घर से लाश बरामद। मकतूल की शनाख्त अनिल कुमार के नाम से हुई। मजीद पुलिस तफसीलात के मुताबिक लाश जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। ख्वाजा असरार को सर में गोली मारी गई। मजीद तफ्तीश शुरू। मंजी बहाउद्दीन थाना सज्ज के इलाके में 12 साला मासूम बच्ची से जिनसी ज़्यादती का मामला। 12 साला बच्ची से मुबैना की पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्ची मुलजिम की अहलिया से पढ़ने के लिए उनके घर जाती थी। मुलजिम ने अपने अहले खाना की गैर मौजूदगी में बच्ची से मुबैना ज़्यादती की। बच्ची का तिब्बी मुआयना करवाया जा रहा है। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और लियाकतपुर में नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस की जानिब से फर्जी मश्क का इनेकाद किया गया, ताकि इमदादी इदारों के रवाबित और ताउन का जायजा लिया जा सके। रेस्क्यू 1122 लियाकतपुर की एम्बुलेंस, बमा, पैरामेडिकल स्टाफ और मोहम्मद अकरम शिफ्ट इंचार्ज ने फर्जी मश्क में हिस्सा लिया, बर वक्त रिस्पॉन्स किया। जख्मियों की मरहम पट्टी, हस्पताल के जरिए मरीजों को जिलाई हस्पतालों में शिफ्ट करने का अमली मुजाहरा भी किया गया और तमाम इवेंट्स में फ्राइज अहसन तरीके से सरंजाम दिए गए। और खुशाब में दरीना दुश्मनी की वजह से संसराल रोड पर मुखालिफिन की फायरिंग, 4 अफराद जान बहक, 3 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। कैरी डब्बा पर ड्राइवर समेत 7 अफराद जोहराबाद तारीख पेशी पर आ रहे थे कि मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मोहम्मद याकूब, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद नवीज और नसर इकबाल जान बहक, जबकि जख्मियों में राना मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इसरार और मोहम्मद खान शामिल। जबकि राना आमिर की हालत तशवीशनाक। 4 लाशें THQ खुशाब मुंतकिल, जबकि जख्मी DHQ जोहराबाद ज़ेरे इलाज हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब राना नुमान महमूद का गंदम की खरीदारी के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जोहराबाद गंदम सेंटर्स और खुशाब गंदम सेंटर्स का विजिट। इंतजामी उमूर का तफसीली से जायजा लिया गया और किसानों के लिए की जाने वाली सहूलियात यानी कुर्सियाँ, पंखों का भी जायजा लिया गया और इंचार्ज सेंटर्स को इंतजामी उमूर मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत भी जारी की गई। और
اور صوبائی وزیر لیبر پنجاب کی سید زلفی بخاری سے اسلام آباد میں ملاقات۔ صوبائی وزیر لیبر پنجاب انصر خان کی سرگودا کی کرش انڈسٹریز کے وقت کے ہمراہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹرز فار آورس اینڈ ہیومن ریسورس اینڈ ڈیولپمنٹ سید زلفی بخاری سے اسلام آباد ملاقات۔ سید زلفی بخاری کو سیلز ٹیکس کے حوالے سے تحفظات پر جامع بریفنگ۔ وفد نے کہا کہ حسن ابدال، جہلم اور دینا میں کرشنگ انڈسٹری کے لیے ٹیکس کے حوالے سے جو میکینزم موجود ہے، سرگودا کو بھی اسی میکینزم کے تحت ڈبل کیا جائے۔ اس موقع پر وفد رانا محمد ارشد خان، چوہدری پرویز مسعود، محمد شفیق، زاہد بھلی اور طاہر بشیر بھی موجود تھے۔ ناظرین، آپ کو صحبت پور سے پیش کرتے چلیں۔ بھنڈ شریف میں واقع پل خستہ حالی کا شکار۔ پلٹ کیا تو صحبت پور، ڈیرہ بگٹی، مانجھی پور اور جعفر آباد، ڈیرہ مراد جمالی، جیکب آباد اور گردنواہ کے شہروں کے لیے آنے اور جانے کا کوئی بھی متبادل راستہ موجود نہیں ہوگا۔ عوامی حلقوں کا MNA خان محمد خان جمالی اور صوبائی وزیر ریونیو میر سلیم خان کھوسہ سے مطالبہ، کہا کہ فوری طور پر خصوصی فنڈز جاری کر کے پل کو دوبارہ تعمیر کروایا جائے تاکہ ناگہانی آفت سے بچا جا سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔